Hello everyone. As you know that I am doing geography previous year questions from civil services examinations. I have already completed till the year of 1988. Today we are going to see the question of 1989. So 1989 they have asked a lot of questions from geography. So I will take a few parts for completing this. So this is the first part of the questions of 1989. Okay, this is about myself. I did master from IIT Bombay and I am the former assistant professor, and also I have taught in the foreign universities. Okay, so let's see the geography previous question from the civil services examinations. Okay, so here you can see that is the match list kind of question. So groundnut, cotton, sugarcane. So we have to match with this leguminous, graminae, Malvaceae. So we'll see that. See, the groundnut is matched with the first itself is correct. Leguminous, cotton is nothing but is matched with third. Malvaceae. And sugarcane is graminae, third. So the answer is B. Okay, it's like very fact-based question, so you have to remember this. If you are knowing already, fine. If you don't know, please remember from here. Next question: the tree of spur, fir, pine, etc. are found in which of the following natural region of the earth? Okay, so Laurentian type, or alpine type, taiga, Siberian. Okay, so what this kind of tree in which type of climate natural region is found? Okay, so this is actually nothing but this a tree of spur, fir, pine. These things you'll find in taiga type, in taiga region. Okay, so if you read about taiga, you will find there. Anyway, don't worry. I will come up with the geography, complete lecture series in the future months. Okay, so if you are following this channel, you will definitely get the static part as well. Next question. So Khasi and Garo tribes mainly live in. Okay, so you have heard about Garo Khasi Jaintia. Okay, so I think you know that what is the answer of this, but anyway we'll see. Kerala, Meghalaya, Chota Nagpur, Tamil Nadu. Okay, so it is actually B, Meghalaya. See, it is hill Garo Khasi Jaintia. These are the three hills. ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे बादल आता है और इसके बीच में फंस जाता है और फिर वहीं पे बरस जाता है. सो देयर इज़ वन प्लेस ओके वेयर द चेरापूंजी के हाईएस्ट रेनफॉल होता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे ड्यू टू दिस हिल. सो इट इज़ इन मेघालय. प्लीज नो गारो खासी जैंतिया इज ऑल थ्री इन मेघालय. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ wood pulp is Canada, USSR, USA and Japan. Okay, so I think we can answer this question. So the largest producer of world wood pulp is something but is the USA. Okay, next question. Find the odd one out. Crisp, Sisera, Marg, Sarad. Okay, so इसमें देखो तीन एक जैसा होगा, एक अलग होगा, वही आंसर होगा जो अलग होगा. ओके, सो इट इज एक्चुअली सी मार्ग. ठीक है, सो द आंसर इज सी. ये हिंदी वर्ड है सारा, तो पुराना मतलब जो पहले यूज़ होता था. ओके, गांव वगैरह में भी यूज़ होता है, शहर में ऐसा कोई बोलता नहीं. माघ, पूस, चैत, बैसाख इस टाइप का होता है. ठीक है, मंथ्स के नेम होते हैं, बट दिस इज एक्चुअली मंथ के हिसाब से फिर हमारा वेदर भी होता है. नेक्स्ट,
the hybrids of what, which of the following plants are available for the commercial production? Rice, wheat, jute, pulses. ठीक है, so they are asking for commercial production. So देखिए commercial production जो होता है हमारा, it is for, देखिए जूट में नहीं होता है, ठीक है, जूट में नहीं होता, बाकी राइस में, व्हीट में और पल्सेस में होता है. सो आंसर इज ए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स? ठीक है, इंट्रोडक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, सेलेक्शन और सेग्रीगेशन. सो वी हैव टू चूज कौन सा ऐसा है कि जो क्वालिटी ऑफ क्रॉप को इम्प्रूव करता है. सो देखिए इसमें जो सेग्रीगेशन, दिस इज नॉट ट्रू, ये चीज़ ज़रूरत नहीं है करने की. सेलेक्शन यस, हाइब्रिडाइजेशन यस, इंट्रोडक्शन यस. सो द आंसर इज सी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए UP 308 इज वैरायटी ऑफ मिलेट, राइस, कॉटन, व्हीट. देखिए ये मतलब एक इसमें से किसी का इज लाइक बीज बोलते हैं ना हिंदी में. तो आई थिंक ये UP 308 अभी करेंट टाइम में ऐसा मैं नाम नहीं सुनता हूँ. ये 1989 का क्वेश्चन है, तो उस समय कोई एक होता होगा. ठीक है. सो दैट्स वाई मे बी करंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है. करंट अफेयर नहीं, उस समय हो सकता है गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस किया हो फॉर प्रोडक्शन ऑफ जो भी हमारा ईल्ड बढ़ाने के लिए. ठीक है. ये एक्चुअली में डी वीट की वैरायटी होती है. ठीक है, आपको पता है यूपी में गेहूँ ज़्यादा होता है. सो ऑब्वियसली दिस इज अ टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ वीट. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्स्ड क्रॉपिंग इज यूज्ड व्हेन crops with varying maturity period are sown together. Okay, crops with same maturity period are sown together. Different soil are used for the same crops. Okay, crops with different nutritional requirement are grown. ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है? इज यूजफुल व्हेन crops with different nutritional requirement are grown. ठीक, that is called mixed. एक ही खेत में अलग अलग न्यूट्रिशनल क्रॉप्स को अगर उगाया जा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग. ठीक है. नेक्स्ट, द लार्जेस्ट एलोकेशन इन द 7th 5-year प्लान हैज़ बिन गिवन टू. देखिए इसका अगर आपको इवन आंसर नहीं भी पता है तो यू कैन गैस एक्चुअली. एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, एनर्जी. ठीक है, ये आई थिंक 89 का क्वेश्चन है, तो उस समय 7th 5-year प्लान आया रहा होगा. ठीक है, ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हो सकता है. सो दिस इज एक्चुअली एग्रीकल्चर. देखिए एग्रीकल्चर को हमेशा से ही ज़्यादा मतलब टॉप पे रखा जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो हमारा ऑलमोस्ट 45 to 50% एम्प्लॉयमेंट देता है. ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में इट्स लाइक वेरी बिग सेक्टर विच प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, सो दैट्स एवरी गवर्नमेंट फोकस ऑन एग्रीकल्चर. ओके, दे अलॉट more and more amount of money for increasing the yield of the production. Next, which of the following is the correct group of खरीफ crops? Okay, खरीफ की बात कर रहा है. रबी और खरीफ दो होता है, एंड जैद 3 टाइप के हमारे होते हैं. सो आई विल टेल यू हाउ आई रिमेंबर दीज. राइस, मिलेट, मैजे, कॉटन, ग्राउंडनट, बाजरा, बार्ले, सोरगम, वीट. ओके, ज्वार, बाजरा, राइस, कॉटन, जूट, ग्राम, वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड. ओके, देखिए खरीफ ये एक्चुअली राइस होता है. ठीक है, राइस, मिलेट,
कॉटन। ठीक है, कई बार आप सब लोगों को याद ही होगा, मुझे इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे रबी वाली कौन सी फसल होगी, खरीफ वाली कौन सी फसल होगी, उसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, तो मैंने कैसे याद किया हुआ है, जैसे आर फॉर राइस, आर फॉर रबी, रबी में राइस नहीं होगा, बस ऐसे याद रखना, तो वो खरीफ में चला जाएगा। इस तरीके में राइस और वीट से कंपेयर करते हैं, तो वीट जो होता है इट इज़ एक्चुअली रबी फसल, ठीक है, और खरीफ जो होता है इट इज़ एक्चुअली राइस। तो आर फॉर राइस, आर फॉर रबी, तो रबी के साथ राइस नहीं होगा, ठीक है, सो इट विल गो टू खरीफ। इस तरीके से याद करते हैं, ठीक है। और जो तीसरा जो होता है हमारा जायद होता है, so if you read geography there you will find what are the crops which generally cultivate in these like in kharif or in rabi. So in kharif mainly rice, millet, maize, cotton has been cultivated. Okay, wheat जो होता है this is wheat, mustard, ग्राम, ओके, बार्ली, ये जो होती है ये सारा रबी की फसल है। ओके, इट इज रबी, रबी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम टैबलेट टाइप लेटेक्स, लेटेक्स जूट, सीड, कैप्सूल ऑफ ओपियम कॉपी, पॉपी लीव्स। दिस इज एक्चुअली जो ओपियम हमारा ऑप्टेन होता है इट इज फ्रॉम सीड कैप्सूल ऑफ ओपियम पॉपी। ओके, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेस्मिक वेव्स दैट वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ their path. Okay, seismic wave that vibrate perpendicular to the direction of their path. So travel through the solid parts of the earth only, travel through solid as well as other part of earth, spread on the surface of the earth, none of the above. ठीक है, तो जो सेस्मिक वेव है वो उसको पूछ रहा है वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ देयर पाथ। तो दिस इज एक्चुअली दे ट्रैवल थ्रू सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ ओनली। जो सेस्मिक वेव होती है ये सॉलिड पार्ट में ही ट्रेवल करती हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना, ठीक है। इसका आंसर इज ए। नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल पॉपुलेशन डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू टोटल एरिया, टोटल पॉपुलेशन टू द टोटल इरिगेटेड लैंड एरिया, टोटल पॉपुलेशन टू urban land area, total population to the rural land area. Okay, so they are asking about the physiological population density is the ratio of. Okay, so the physical population density is the ratio of total population to the total area. Please remember this. Answer is A. देखिए ये सब बहुत ही पुराने क्वेश्चंस हैं और ये स्टैटिक पार्ट वाले क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन इवन यूपीएससी में भी रिपीट हो सकता है, स्टेट पीएससी में तो होता ही होता है, ठीक है। और मैं आपको ऑलमोस्ट 35 to 40 ईयर का करा रहा हूँ और ऑलमोस्ट 4000 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो दिस इज फॉर श्योर 30 to 40% क्वेश्चन विल गेट फ्रॉम हियर स्टैटिक पार्ट। आई विल नॉट से अबाउट द करंट अफेयर दैट यू हैव टू रीड from the newspaper or magazines, whatever resource you are following, that for current affair you have to read that. Okay, so this was the end of the first part of this geography 1989 question from various prelims examinations. We'll see more parts, okay, and we'll finish this year question, and subsequently we will go for the next year questions.